ब्लॉग्स में आपका भाई कुणाल। तो भाई आज की देख सकते हो भाई वीडियो होने वाली है भाई स्विफ्ट के ऊपर, ठीक है भाई। बहुत टेस्टफुली भाई ने मॉडिफाई कर रखी है भाई, ठीक है। मैं इस गाड़ी को क्लेम कर रहा हूँ कि भाई दिल्ली की पहली कार है, क्योंकि इसके अंदर ऐसा मोड हो रखा है जो भाई शायद ही किसी कार में हो रखा होगा। तो बेसिकली हम स्विफ्ट को क्लेम करते हैं कि भाई दिल्ली की एक कार है भाई, ठीक है। मेरे फ्रेंड की कार है, मैं उनको बुलाता हूँ, ब्रो आ जाओ। सो भाई ठीक है, ये कारनेज भाई इनकी कार है। तो भाई आप थोड़ी सी डिटेल्स ऑडियंस को बता दो। So this is my 2013 Suzuki Swift 1.2 पेट्रोल। इस पे बॉडी रीइंफोर्समेंट मेनली फोकस किया गया है। वी हैव ट्राई टू फोकस ऑन द हैंडलिंग एंड ब्रेकिंग एस्पेक्ट ऑफ द व्हीकल। सो आई विल गिव यू अ क्विक वॉक अराउंड ऑन व्हाट ऑल वर्क हैज बीन डन। ठीक है भाई, तो भाई की कार है। अब इसके बारे में आपको थोड़े सिनेमैटिक शॉट्स देता हूँ, फिर उसके बाद इसकी डिटेल्स बता। हाँ भाई, तो आप बताना स्टार्ट करें कार के बारे में। So this is my 2013 Suzuki Swift. It's a 1.2 petrol. The main focus of this car is chassis reinforcement and handling, included with braking, because for such a small vehicle, focusing on performance in terms of straight power output is not a very big perspective for this car. So I have started. Let me cover the whole vehicle for you from the front to back, and I'll explain what all work has been done on the vehicle. So starting from the front impact bar of the vehicle has been reinforced and directly welded onto the chassis. So normally from Suzuki, the impact bar is bolted on and it's a very thin layer of metal. So extra metal has been added onto the bar and it is directly welded onto the chassis. After that, there is a bash plate under the engine to protect the car from stones and debris. So that it doesn't affect the crankcase or the engine. After that, there has been reinforcement on the A pillar, the B pillar and the C pillar of the vehicle, so that there is little to no torsional flex of the body. After that, the vehicle has a bar inside on the footrest area of the rear passenger side. So this helps the vehicle to become stiffer, so that it doesn't flex when you are taking corners at little to more than speeds at like around 100 kilometers per hour, for example. And similarly, there is a bar at the rear also, which connects both the suspension mounts and the body, so that there is no flex in the rear suspension, so that it can work completely. So these are the things done for the chassis stiffness. And also there are welds in the door seams, as I'll show you right over here. So from the company, Suzuki has very poor quality on door welds. Like as you can see, there are multiple welds over here. Now the company has only 3 to 5 welds per door, but this has around 50 welds per door. And when you couple it with 4 doors, the welds make a huge difference in the torsional rigidity of the vehicle, and this helps controlling body flex. And as I'll show you the rear bar over here. So this is a casing made out of wood and plastic, which I used to conceal the subwoofer and the rear bar. So you take this out like this, and you see this is the bar over here. So this bar is directly connected to the suspension point this side and that side. Push this out a little. Yeah. So as you can see over here, it's connected to the suspension directly and to the body. So this makes a huge difference in controlling the slip of the rear end of the vehicle. Other than this, I'll show you there's a bar in the under seat storage also, like where you keep your legs. भाई सीट की साइड पे आ चुके हैं। अब भाई आपको सीट के अंदर जो चीज़ लगा रखी है वो आपको बताएंगे। So यहाँ पे जहाँ पैर रखते हैं,
तो मैंने यहाँ पे इसके नीचे जो कवर है, नॉर्मल कवर, इसके नीचे आप देख रहेंगे थोड़ा सा अंडुलेशन है। सो इसके नीचे एक मेटल का बार लगाया हुआ है जो दोनों साइड्स गाड़ियों पे डायरेक्ट बॉडी पे वेल्ड किया हुआ है, ताकि गाड़ी का फ्लेक्स जो इस तरफ होता है उसको रोकने और उसको कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। जब आप नॉर्मली कॉर्नर्स लेते हैं एक व्हीकल में, आपने नोटिस करा होगा कि या तो आपका फ्रंट एंड या तो आपका रियर एंड थोड़ा फिसलता होगा, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम बॉडी स्टिफनेस बढ़ाते हैं गाड़ी का। तो ये काम किया हुआ है ये टोटली। इसमें एग्जॉस्ट का भी काम होगा शायद? हाँ, इसमें एक सिंपल एग्जॉस्ट लगा हुआ है, ज़्यादा शोर शराबा नहीं है, क्योंकि मैं इसको डेली यूज़ करता हूँ इस व्हीकल को। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि एग्जॉस्ट पे क्या काम किया हुआ है। एंड इसकी BHP भाई आपने कितनी इंक्रीज कर दी होगी? अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7 bhp मोर। फैक्ट्री से 83 bhp 120 न्यूटन मीटर टॉर्क है। सो दिस इज़ अराउंड 90 bhp 130 न्यूटन मीटर टॉर्क अप्रॉक्सीमेटली। So this is a intake pipe from ProRace Customs and this is a BMC filter which I have been using for quite some time now. और इस तरफ आप देख सकते हैं this is a 4-to-1 header setup. So these are 4 pipes which come out from each exhaust port of the cylinder. They join back into 2 pipes, 4 into 2 into 1, and that one pipe leads to a catalytic converter, and converter के बाद एक hand built muffler है. So the volume is not too loud, बट इट हैज़ अ लिटिल रास्पी नोट कि जब आप पंजा दो तब आवाज़ आए, वरना इसका आवाज़ एकदम शांत रहता है। एंड ब्रो जैसे आप देख सकते हो आपने लाइट्स में भी कुछ ही करा रखा है। ये बेसिक टिंट है, बिकॉज मुझे अधिकतर वाइट लाइट पसंद नहीं है। सो आई प्रेफर कि रात के समय, स्पेशली ड्यूरिंग विंटर्स लाइक इट इज़ राइट नाउ, इस सिंपल फिल्म से थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है विजिबिलिटी में जब आप नॉर्मल लाइट ऑन करते हो। नथिंग स्पेशल, जस्ट अ सिंपल रैप, बट इट मेक्स अ डिफरेंस। अलॉय क्यों नहीं लगाया, मतलब प्रेफरेंस आपकी अलॉय क्यों नहीं रही? तो कंपनी से आपको जो व्हीकुलर अलॉयज आते हैं, दे वे अराउंड 7.1 किलोज, जो इसके फैक्ट्री अलॉयज आते हैं। एंड दीज आर द जेन्युइन ओरिजिनल स्टील व्हील्स विच आई पिक्ड अप फॉर द सियाज। 15 इंच के हैं, रनिंग ऑन 195 55 R15 टायर्स, सो योकोहामा इज ड्राइव। द मेन रीज़न आई डिडंट गेट अलॉयज फॉर दिस व्हीकल, इनफैक्ट आई रिमूव द अलॉयज, क्योंकि इसका वज़न बहुत कम है। तो मैं आपको सिंपल शब्द में कैसे बताऊं, अगर पहिया बहुत भारी है तो भारी चीज़ को घुमाने में ज़्यादा जान लगता है। हाँ। अगर चीज़ हल्का होगा तो घुमाने में कम जान लगेगा। आपका थ्रॉटल रिस्पॉन्स भी फ़र्क पड़ेगा इंस्टेंटली, क्योंकि आसानी से पहिया घूम पा रहा है। और आपका जो इनपुट है स्टीयरिंग व्हील पे, वो भी काफ़ी लाइट हो जाता है। वो आपका पर्सनल प्रेफरेंस है कि आपको लाइट स्टीयरिंग इनपुट चाहिए या थोड़ा वेटेड स्टीयरिंग इनपुट चाहिए। उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं वेदर यू वांट टू गो फॉर अ हेवी अलॉय और समथिंग सिंपल एंड लाइट लाइक अ स्टील। तो बेसिकली आपने परफॉर्मेंस पे सारा काम कर रखा है जितना आप देख सकते हैं ना। हाँ, इसमें जो बेसिकली सारा काम है। और इंटीरियर में आपने कुछ करा रखा है? इंटीरियर में तो कुछ नहीं, जस्ट सिंपल ऑडियो सेटअप, 4 ट्वीटर्स, 4 components from DLS Sweden, and a simple Blåpunk subwoofer which is approximately 1300 watts RMS. That's it, nothing special. Nothing special. No, it's kind of a special car. And you have the basically the gear knob is changed. This is a original Sparco gear knob which I managed to get from a reseller here in Delhi. Simple little aluminium knob. पकड़ने का फील अच्छा रहता है, लेकिन हाँ गर्मी में थोड़ा हाथ जलता है, बट it's fine. हाँ, I'll start the car right now and give you a small quick look of how the exhaust sounds. बेसिकली भाई देख सकते हो ये जो कार है अभी स्टिल खड़ी है, मतलब इसके अंदर कोई रेव नहीं है। तो देख सकते हो ज़्यादा फर्क नहीं पता चलेगा। ठीक है, भाई ने स्पार्को को टोटा लगा रखा है। गाड़ी भाई तमिलनाडु की देख सकते हो जैसे। ठीक है, BMC का एयर फिल्टर भाई देख सकते हो, बैजिंग कर रखी है भाई ने। भाई आप रेव करो एक बार इसका। काइंड ऑफ अ लाउड भाई, देख सकते हो भाई ज़्यादा लाउड है भाई। भाई कह रहे हैं कम है बट इट्स एक्चुअली लाउड। ठीक है, भाई ने वो टेस्टफुली मॉडिफाई कर रखी है। ठीक है भाई ने स्मोक कर रखा है पीछे ये। तो कार बेसिकली परफॉर्मेंस के बेसिस पे बना रखी है भाई ने, जैसे देख सकते हो। और आप जैसे मेरे को मैंने सुना था कि आप इसको ट्रैक पे भी ले जाते हो। हाँ, इसको ऑटोक्रॉस इवेंट्स पे लेके गया हूँ, इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट ट्रैक डेज पे लेके गया हूँ। आई ट्राई टू फोकस मोर ऑन ऑटोक्रॉस इवेंट्स, क्योंकि ट्रैक पे सिंस इट्स अ स्मॉल व्हीकल
you don't have the straight outright power to go fast on the straights. So autocross events पे क्योंकि vehicle chassis काफ़ी काम किया हुआ है, it's rigid and you know it handles well on small and tighter circuits. तो इसको autocross events के लिए मैं प्रेफर करता हूँ, इसीलिए I built it with that aim in mind. ओके, एंड इसकी आप शायद पीछे की सीट्स भी हटाए तो रेयर जो सीट्स है। पीछे के सीट्स कभी कभी हटा देता हूँ क्योंकि 18 किलो का पीछे का सीट है, तो जब मैं इवेंट या कुछ कर रहा होता हूँ उसका वेट ड्रॉप से थोड़ा फ़र्क पड़ता है कि द रियर एंड टेंड्स टू स्लाइड आउट वंस यू रिड्यूस वेट बिहाइंड। वो आपके प्रेफरेंस के ऊपर है, अगर आपको चाहिए थोड़ा टेल हैप्पी व्हीकल तो यू कैन रिमूव द सीट ऑल्सो इफ यू वांट टू। ओके, तो भाई अब इसके अंदर बैठते हैं, इनका सिस्टम बताता हूँ आपको चालू करके एंड फिर आपको सारा सीन बताऊँ। भाई देख सकते हो बेसिकली कार के अंदर आ चुके हैं, ठीक है। भाई ने बिल्कुल बेसिक रख रखी है अंदर से कार पर, ठीक है भाई। तो बेसिकली आपको जैसे देख सकते हो भाई ने स्टिकर विकर लगा रखा है, तो आप इंटीरियर पे क्यों नहीं जाते इस कार के? मैं इस व्हीकल को काफ़ी मतलब रफ़ यूज़ करता हूँ। पहले सीट कवर्स वगैरह लगाए, दे टेंड टू टेयर आउट ईजिली, तो मैंने सोचा जो कंपनी का OEM सिंपल सेटअप है इसको यूज़ करो, ये घिस जाएगा तो बाद में बदल लेंगे। हाँ, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड आपने इसका स्टीरियो ये वाला क्यों चूज़ किया? मैंने ये चूज़ किया क्योंकि इसका जो OEM फैक्ट्री से टॉप एंड मॉडल का स्टीयरिंग, ये सॉरी स्टीयरिंग नहीं, जो सेटअप आता है इसका ऑडियो का स्टीरियो का, ये डायरेक्ट सबवूफर के लिए एक इंडिपेंडेंट लाइन नहीं है कनेक्शन का। सो ओम इम्पिडेंस जो बोलते हैं ऑडियो में वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो रेजिस्टेंस होता है उसको कम करने के लिए इंडिपेंडेंट लाइन्स चाहिए होते हैं। तो इसमें वो ऑप्शन है कि आप वूफर को सेपरेटली कनेक्ट करके आप इंडिपेंडेंटली वूफर को कंट्रोल कर सकते हो डायरेक्टली इस यूनिट से, तो इसीलिए आई गॉट दिस यूनिट। एंड इसमें एम्प क्या यूज़ कर रहे हैं आप? Amp is a simple local amp. It's nothing special because I try to spend all the money on the components. Amp बस अभी फिलहाल के लिए जुगाड़ू सेटअप लगा रखा है, बट इट रन्स डिसेंट क्योंकि माई मेन फोकस इज नॉट ऑन ऑडियो, बस चाहिए था थोड़ा बहुत गाना सुनने के लिए तो लगा दिया। एंड अप्रॉक्सीमेटली इस कार में आपको कितना खर्चा होगा? भाई करीब 115 yeah, approximately including the system and the car, including the reinforcement, the exhaust, the tune, everything मिला के। एंड अगर किसी को reinforcement करानी हो तो वो कहाँ से करा सकता है इस चीज़ को? reinforcement के लिए मैंने अपना काम कराया है पहाड़गंज में है धीमन इंजीनियरिंग वर्क्स के नाम से। they mainly focus in specializing off-road vehicles because off-road vehicles में chassis stiffening और body stiffening का काफ़ी ज़रूरत पड़ता है। so this is where I got my reinforcement and my exhaust setup built from them. Okay. अब आप साउंड प्ले कर दो और फिर सुनाते हैं ना। बेसिकली भाई अब इसके बारे में बता दो, जिसका सस्पेंशन है बेसिकली भाई अब उसके बारे में बता दो। सो दिस इज़ रनिंग कोबरा के स्प्रिंग्स 30 mm ड्रॉप ऑन ऑल 4 साइड्स, और इसके जो स्टॉक डैम्पर्स हैं तो इसमें 2 तरह के डैम्पर्स आते हैं, पेट्रोल स्विफ्ट और डीजल स्विफ्ट के ना डैम्पर्स अलग होते हैं क्योंकि डीजल व्हीकल का इंजन आगे से थोड़ा भारी रहता है तो उसके डैम्स कंपनी से थोड़ा स्टिफ रहते हैं। सो इसमें डीजल स्विफ्ट के डैम्स लगे हुए हैं आगे और पीछे, तो क्योंकि डैम्स थोड़े स्टिफ है तो उसका रिबाउंड कंट्रोल ज़्यादा आसानी से होता है। मतलब गाड़ी थोड़ा पत्थर है, कंफर्टेबल उतना नहीं होता है, लेकिन जब आप गाड़ी को लिमिट पे पुश कर रहे हो तब आपको फ़र्क पता चलता है नॉर्मल सस्पेंशन सेटअप और कोबरा स्प्रिंग्स और डैम्स के साथ छेड़खानी करने के बाद फ़र्क क्या है। so बेसिकली ये फ़र्क है भाई, ठीक है। बाकी आप भाई की कार का लुक कुछ ऐसा आ रहा है, देख सकते हो, ठीक है। सिंपल सुपर कार है, ठीक है भाई। तो ट्रैक का सीन सेट है, देख सकते हो भाई, ठीक है। यहाँ पे करते हैं ट्रैक्शन ऑफ है, 3 आवर्स में भाई करो।
वीडियो कैसी लगी भाई सारे भाई कमेंट्स में बता देना, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। भाई की कार बहुत ज़्यादा सिक है भाई, ठीक है। दिल्ली की इकलौती कार है ऐसी जो भाई ने बना रखी है, ठीक है। बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल बढ़िया, ऐसी गाड़ी नहीं हो सकती भाई, ठीक है। चेज भी बहुत अच्छा करा, बस ये भाई ये पेट्रोल है, ये डीजल है, थोड़ा सा ये ज़्यादा है इसलिए निकल गए, नहीं तो भाई इसकी टक्कर और कोई स्विफ्ट नहीं कर सकती, ठीक है भाई। बाइक के साथ मिलकर मेरे को बहुत अच्छा लगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।